شودا پھٹ رہا بٲڑ شودا خٲطرٕ جاے أسۍ گٔے دُکاندار چھِنہٕ ییٚتہِ دٔسلاب بہٕ چھُس دُکاندار دٔسلاب چھُنہٕ اَتھ چھُ واپس کھسُن یہ چھنا بٔڑ پرابلم قرآن شریف قسم سون عیال میڈم تھی سوچ مگر یہ دکاندار ونان ترو چلو پان یہ دکاندار دہن ورین کر یتھ بی جے پی حکومت گۄڈٕ بوز کتھ میں آج اس وقت موجود ہے تو کیا کچھ مسئلہ یہاں پہ تھا تو کیا کچھ دقتیں اس پل کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو آ رہی ہے؟ یہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں بیکاز آف دس ناٹ بیکاز آف دس برج بیکاز آف دا ڈپارٹمنٹ آف اسمارٹ سٹی. یہ برج عمر صاحب نے ہمیں دیا تھا جب نیا برج بنا تو یہاں کے لوگوں نے ایک ریپرزنٹیشن کی تھی عمر صاحب کے نام اور میں تھی کیونکہ ایم ایل اے اور میں نے وہ آگے بڑھائی. عمر صاحب نے ہمیں 3 کروڑ روپے اس برج کے لیے پھر سے دیے تاکہ یہاں کے لوگ یہ لوگوں کے لیے رہے فراہم کیا. یہ برج نئے سرے سے بنوایا, نیچے سے تو بالکل ٹھیک تھا پھر اوپر سے دیا بنا کے تاکہ یہاں کے لوگ اس سائڈ کے وہاں جائے, وہاں کا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں سے گزرے اور جو شاپ کیپرس ہے ان کا کاروبار چلے. لیکن جب سے انہوں نے یہ اسمارٹ سٹی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جٹیاں بنائے, ہم اسمارٹ بنائے, لیکن اسمارٹ آپ دیکھ لیجئے کیا ہے, تارے کیا ہے یہ اسمارٹ سٹی. اگر اسمارٹ سٹی بنانی تھی تو پہلے یہ سارا کچھ یہ کرنا تھا. مندر دیکھے کس حالت میں, پہلے اس کو رنگ روگن کرنا تھا. اسمارٹ سٹی وہی کہلاتے ہیں جہاں پر ہم جائے تو ہمیں اچھا لگے, خوبصورتی ہمیں لگے. لیکن انہوں نے کیا ان کو پیسہ خرچ کرنا تھا تو انہوں نے اس حبہ قدل کو برباد کیا. جو ایک پرانا برج تھا لوگوں کو کافی یہاں سے آرام آسائش آنے جانے کے لیے بہت مفید تھا اور کاروبار یہاں سے بہت اچھا چل رہا تھا. یہاں کے دکاندار شاپ کیپرس, وہاں کے شاپ کیپرس, وہاں کے جو حبہ قدل کے یہاں سے زادگر سے لوگ آتے ہیں یہاں سے پھر یہاں سے گزر کر باقی دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ کلوز کیا, یعنی کہ ایک تو یہاں پر بیریکیڈز لگائے, دوسرا یہ جٹیاں بنائی. اب یہ کیا اس سے ہمارے لیے پرابلم ہو گئی, وہ پرابلم ہو گئی. یہاں پہ جو نوجوان آتے ہیں وہ شام کو بیٹھتے ہیں 5 بجے سے ہی وہ ڈرگ ایڈکٹ بن گئے ہیں اور وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں, براؤن شوگر کا استعمال کرتے ہیں, دن بھر شراب پیتے ہیں. یہاں سے گزرنا بزرگوں کے لیے مشکل ہے اور جو لڑکیاں تو یہاں سے گزرتی نہیں, یہاں سے عورتیں گزرتی نہیں. اب میں عمر صاحب سے بھی گزارش کرتی ہوں یہاں سے
आपको पता है इस वक्त देखिए, जहां मैं उमर साहब से गुजारिश करता हूँ, बहुत सारी जगहों पे जो स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ लोगों का इस्तेसाल हुआ है, ये भी उसकी एक बहुत बड़ी निशानी है। मैं उनसे भी इस्तदा करती हूँ कि वो देख ले कि यहाँ के लोग जीना चाहते हैं, वो कुछ कमाई करना चाहते हैं। 10 साल के बाद उनको हुकूमत मिली है, 10 साल के बाद उनको एक पॉपुलर हुकूमत मिली है, अपनी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार मिली है। इन सब लोगों को और हमें भी बहुत उम्मीदें वाबस्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ। आपने देखा होगा कल ही उमर साहब ने ऐलान किया कि मैं यही बैठूंगा, कश्मीर में बैठूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, जम्मू में नहीं जाऊंगा, ताकि मैं खुद जो पावर सप्लाई की है उसका मैं साम लूंगा, खुद ही मैं देख लूंगा कि कहाँ पर गलती होती है, कहाँ पर लोगों को सताया जाता है, कहाँ पर ज्यादा फाइन किया जाता है, वो सभी खुद ही मॉनिटर करेंगे। इसलिए वो लोगों के हमदर्द है और इंशाअल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन अब ये उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूँ उमर साहब इनको बहुत जल्द बुला के लाए, और मैंने भी चीफ साहब हमारे साथ है, मैंने इनके साथ डिस्कस ऑलरेडी किया है कि ये जो बैरिकेड है ये उठाया जाए, और जो यहाँ पर फंस क्रिएट की है ये भी उठाई जाए, और ये जो ब्रिज है ये पुरानी हालत में आना चाहिए ताकि लोग यहाँ से उनके लिए आसाइश हो। पुराने शरीफ को कसम सोन आयाल है तो फाक करवा तो वना उछा मैडम जितना ताई सोच से सपोर्ट करियो तो बढ़िया आसी पाने समझिए वन हेलो क्या जगह बोल Şurada fotoğraf bu gayet. Hadi. Bana şurada yıkıcı var. Eski dukanlar için dışlabı bütün dukanlar. Dışlabı için. Kaybolun अच्छी जाए या पूरा के या Valla artık. मैंने फटे यार सचिन जवान साला साहब İşe ne bird from? बामने आकर दहन वजन कर या बीजेपी हुकूमत बड़ बोझ का यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं बिकॉज ऑफ दिस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस ब्रिज, बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी। ये ब्रिज उमर साहब ने हमें दिया था जब नया ब्रिज बना, तो यहाँ के लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन की थी उमर साहब के नाम, और मैं थी क्योंकि एमएलए, और मैंने वो आगे बढ़ाई। उमर साहब ने हमें 3 करोड़ रुपए इस ब्रिज के लिए फिर से दिए ताकि यहाँ के लोग, ये लोगों के लिए रहे, फराहम किया। ये ब्रिज नए सिरे से बनवाया, नीचे से तो बिल्कुल ठीक था, फिर ऊपर से दिया बना के ताकि यहाँ के लोग इस साइड के वहां जाए, वहां का जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से गुजरे, और जो शॉपकीपर्स है उनका कारोबार चले। लेकिन जब से इन्होंने ये स्मार्ट सिटी की वजह से इन्होंने कहा कि हम इसको जटिया बनाए, हम स्मार्ट बनाए, लेकिन स्मार्ट आप देख लीजिए क्या है, तारे क्या है ये स्मार्ट सिटी। अगर स्मार्ट सिटी बनानी थी तो पहले ये सारा कुछ ही करना था। मंदिर देखिए किस हालत में, पहले इसको रंग रोगन करना था। स्मार्ट सिटी वही कहलाते हैं जहां पर हम जाए तो हमें अच्छा लगे, खूबसूरती हमें लगे। लेकिन इन्होंने क्या इनको पैसा खर्च करना था, तो इन्होंने इस हबकदल को बर्बाद किया। जो एक पुराना ब्रिज था, लोगों को काफी यहाँ से
आराम, आसाइश, आने जाने के लिए बहुत मुफीद था और कारोबार यहाँ से बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ के दुकानदार, शॉपकीपर्स, वहाँ के शॉपकीपर्स, वहाँ के जो हबा कदल के, यहाँ से ज़्यादातर से लोग आते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से गुजर कर बाकी दूसरी जगहों पे जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये क्लोज किया। यानी कि एक तो यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए, दूसरा ये जेटियां बनाई। अब ये क्या, इससे हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे जो नौजवान आते हैं वो शाम को बैठते हैं, 5 बजे से ही वो ड्रग एडिक्ट बन गए हैं और वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं, दिन भर शराब पीते हैं। यहाँ से गुजरना बुजुर्गों के लिए मुश्किल है और जो लड़कियां तो यहाँ से गुजरती नहीं, यहाँ से औरतें गुजरती नहीं है। अब मैं उमर साहब से भी गुजारिश करती हूँ, यहाँ से आपको पता है इस वक्त देखिए, जहां मैं उमर साहब से गुजारिश करता हूँ, बहुत सारी जगहों पे जो स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ लोगों का इस्तेसाल हुआ है, ये भी उसकी एक बहुत बड़ी निशानी है। मैं उनसे भी इस्तदा करती हूँ कि वो देख ले कि यहाँ के लोग जीना चाहते हैं, वो कुछ कमाई करना चाहते हैं। 10 साल के बाद उनको हुकूमत मिली है, 10 साल के बाद उनको एक पॉपुलर हुकूमत मिली है, अपनी सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार मिली है। इन सब लोगों को और हमें भी बहुत उम्मीदें वाबस्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ। आपने देखा होगा कल ही उमर साहब ने ऐलान किया कि मैं यही बैठूंगा, कश्मीर में बैठूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, जम्मू में नहीं जाऊंगा, ताकि मैं खुद जो पावर सप्लाई की है उसका मैं साम लूंगा, खुद ही मैं देख लूंगा कि कहाँ पर गलती होती है, कहाँ पर लोगों को सताया जाता है, कहाँ पर ज्यादा फाइन किया जाता है, वो सभी खुद ही मॉनिटर करेंगे। इसलिए वो लोगों के हमदर्द है और इंशाअल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन अब ये उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूँ उमर साहब इनको बहुत जल्द बुला के लाए और मैंने भी, चीफ साहब हमारे साथ है, मैंने इनके साथ डिस्कस ऑलरेडी किया है कि ये जो बैरिकेड है ये उठाया जाए और जो यहाँ पर फस क्रिएट की है ये भी उठाई जाए और ये जो ब्रिज है ये पुरानी हालत में आना चाहिए ताकि लोग यहाँ से उनके लिए आसाइश हो।